हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। ये है BYD की सील इलेक्ट्रिक सेडान। इस कार की प्राइसिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम ₹41 लाख एक्स शोरूम एंड एज यू कैन सी दिस इज अ फास्टबैक बॉडी स्टाइल हियर इन द इंडियन इलेक्ट्रिक सेडान मार्केट। देयर इज नथिंग क्वाइट लाइक इट बिकॉज Hyundai ने अपनी आयोनिक 6 सेडान इंडियन मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं की है। This BYD Seal is available to you in a total of 3 variants. Power and torque output of course varies and also the range varies, and if you buy the performance spec top trim of the BYD Seal, that might not be the longest range option of this sedan, but that is a high performance option for you because that will accelerate under 4 seconds from 0 to 100 kilometers per hour. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस BYD Seal इलेक्ट्रिक सेडान के इंटीरियर कैबिन के बारे में, अबाउट द स्पेस, द फीचर्स एंड द ओवरऑल ergonomics. हमने 2 अलग वीडियो अपलोड किए हैं, वन वेयर वी स्पीक अबाउट द एक्सटीरियर डिजाइन एंड वन वेयर वी गिव यू अ डिटेल्ड राइड रिव्यू. So now is a good time to subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon so that you are notified every time we upload a content piece for you. So now before I step inside and start talking about the features in detail, सबसे पहले बात करते हैं ingress and egress के बारे में. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches and this is how tall I look next to the BYD Seal electric sedan. आप देख लीजिए ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ज्यादा नहीं है. This is a low squatting fastback body styled electric sedan here for the Indian market. When I have to get inside, I do have to put in some effort because the seat is at its lowest right now and also overall seating position जो है वो lower है, closer to the ground है. Check this out. This is not bad at all. This is very sporty but it is not cramped. अगर मुझे गाड़ी में से उतरना है so this is not too difficult. अगर आप ये BYD Seal इलेक्ट्रिक सेडान आपके बुजुर्ग फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करने वाले हो, उन्हें गाड़ी में अंदर बाहर मूव करते समय शायद थोड़ी मेहनत करनी होगी, बट अदरवाइज फॉर द फिट वंस दिस इज नॉट टू बैड एट ऑल. चेक दिस आउट. यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक सेडान के साथ आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है एंड इवन द लंबर सपोर्ट इज समथिंग दैट यू कैन एडजस्ट एंड all of these buttons by the way are of really good top quality. Before we start speaking about the interior cabin and the space, आप एक बार डोर ट्रिम को भी देख लीजिए. आपको बॉटल होल्डर्स की स्पेस मिल जाती है. There is a button to open and release your tailgate. You have all the standard controls on the driver door pad. You have this very nice looking dark colored elements over here. यहाँ पे आपको suede finish मिल जाती है on the door pad. Dyna Audio की branding and everything is very well put together. Contrast stitching, leatherette upholstery and you have a soft touch finish overall. This looks very good. This looks very premium and it is very good to touch. Genuinely good to touch. अभी space की अगर बात करें तो check this out. There is very good headroom that is available for me, for my height and for my body type. और ये जो स्टीयरिंग व्हील है, चेक दिस आउट, इसे आपको मैन्युअली एडजस्ट करना होगा. यू कैन पुश एंड पुल अप एंड डाउन, सो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट एंड द स्टीयरिंग व्हील इज ऑल्सो ऑफ द राइट साइज. फील्स गुड. आपको लेदर अपहोल्स्ट्री यहाँ पे मिल रही है. अगेन जस्ट हैव अ लुक एट द हेडरूम दैट इज अवेलेबल. ऊपर आपको एक फुल ग्लास सेक्शन मिलता है. नो ओपनेबल पैनारोमिक सनरूफ बट अ फुल ग्लास रूफ, सो दैट ऑल्सो एड्स टू द overall drama that you will notice जब आप इस गाड़ी को especially रात को चला लेते हो and if you are in a scenic spot. But even with this glass roof, I was very comfortable on a hot sunny day here in Delhi and मुझे ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही थी because the AC performance is also quite good. Now the seat, check this out. Very good looking, beautiful looking seats. फैंटास्टिक डिटेलिंग, ये क्विल्टेड काइंड ऑफ पैटर्न आपको दिया गया है. कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग, ब्लू एंड वाइट. यहाँ पे आपको वाइट पाइपिंग भी दिखाई देगी एंड देन यू हैव आइसोफिक्स माउंट्स इवन फॉर द फ्रंट सीट. आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिए गए हैं इस कार के साथ एंड द सीट कंपाउंड इज जेन्युइनली वेरी गुड. एंड चेक आउट द साइड बोल्स्टरिंग. आपको ये बकेट सीट, स्पोर्ट सीट स्टाइल इस कार में मिल रही है एंड इट नॉट ओनली लुक्स गुड, चेक दिस आउट, it offers you very good lateral support जब आप इस गाड़ी को ज़्यादा तेज चलाने वाले हो. Also because this car is genuinely dynamically so rich that you can push it around corners. So for that check out our drive review video. Coming back to the seats, this is
जेन्युइनली स्पेशियस और स्पोर्टी भले ही ये सीट दिख रही है, इवन इफ यू आर अ लिटिल ब्रॉडर और अ लिटिल बिट हेल्दियर देन मी, आपको इस सीट पे कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगा। द सीट्स बाय द वे हैव कूलिंग एंड हीटिंग फंक्शनैलिटी, जो मैं आपको कुछ ही मिनटों में दिखा दूंगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ स्पेस, no problem at all, and in terms of ergonomics, everything is going to fall in place in your hands easily and effortlessly. अब ये जो स्टीयरिंग व्हील है, all black like I mentioned with some contrasting dark colored elements, and all the buttons over here they are of the right size. आपको कोई feather touch बटन नहीं दिया गया है, so you can easily operate this on the go. आप गलती से कोई गलत बटन प्रेस नहीं कर दोगे। BYD की ब्रांडिंग, and this is how the horn sounds. Not bad, and you need a firm press on the horn pad, तो accidentally आप honk नहीं करोगे। Now let us talk about that screen, that speedometer cluster. अभी ये जो speedometer cluster है, check this out, full digital and it looks very nice, crisp details और सभी information यहाँ पे consume करने के लिए काफ़ी आसान है। Check this out, यहाँ पे से ही आप AC controls जो हैं उन्हें change कर सकते हो, so the fan blower and also the temperature setting, तो उसे भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। देन यू विल नोटिस यू हैव योर व्हीकल अलर्ट्स, देन यू हैव योर टाइमर। यहाँ पे आपको ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, जैसे कि ड्राइव टाइम, दिस इज़ योर ऑनबोर्ड ट्रिप कंप्यूटर एक्चुअली। यहाँ पे आपको बैटरी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, द वे यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल, एंड देन यहाँ पे आपको TPMS की इन्फॉर्मेशन भी दिखाई देगी। देन यू हैव योर स्पीड लिमिटर फंक्शनैलिटी, and then you have two themes. So this is the simple layout for your theme, for your speedometer cluster, and this is classic. Color skin में कोई फ़र्क नहीं है, it is just the layout that differs. So you let us know which skin do you prefer. Overall दोनों ही skin में ये सभी information consume करना आसान है। You have your ambient temperature, a clock, your mode selected, your gear selected, your regen setting जो आपने select कर रखी है, then you have your battery SOC and the range that is left, your digital speedometer cluster, couple of telltale lights for your ADAS as well, and you have your odometer too. Overall this is a very good looking screen and इसे आप काफ़ी आसानी से wipe भी कर पाओगे। You are not going to damage the screen, कोई प्लाज्मा यहाँ पे नहीं है, so this is good. Of course this is a new age vehicle and it will last the distance. अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, this section is not a storage bin, this is for your head up display, but this is too large और मुझे ऐसा लगता है कोई कभी यहाँ पे कुछ सामान ना गिरा दे, because that might damage your head up display. अभी head up display जो है वो आपको यहाँ पे clearly नहीं दिखाई देगा because it is quite bright outside, but you can see something flickering over there, can't you? So that is your head up display और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी information मिलती है, जैसे कि स्पीड रीड आउट एंड योर क्रूज कंट्रोल सेटिंग एंड योर ADAS सेटिंग्स एज वेल। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मॉडर्न फीचर विच यू गेट विद दिस BYD सील। अभी बात करते हैं इस दूसरे बड़े स्क्रीन के बारे में, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, लेट अस टॉक अबाउट द पार्टी ट्रिक विच इज़ दिस बटन ओवर हियर। सो चेक दिस आउट, जब मैं ये बटन प्रेस करता हूँ आप स्क्रीन ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, एंड यू कैन डू दिस इवन ऑन द गो। गाड़ी चलाते समय भी आप ये स्क्रीन ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, अनलेस यू हैव कनेक्टेड एप्पल कारप्ले, तभी ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती है। एंड दिस मोटर इज़ ऑल्सो क्वाइट, ओके। तो ये जब चेंज हो रहा होता है लेआउट, ये ओरिएंटेशन, तभी कोई ज़्यादा मोटराइज्ड मैकेनिकल साउंड कैबिन में आपको सुनाई नहीं देगा। दिस इज़ द बटन फॉर इट, एंड वन टच, these are the two angles. I really like it in this horizontal format because होता ऐसा है that if it is in this vertical stack, it eats up from your driver's point of view. वो आपका जो vision है वो थोड़ा इस layout की वजह से hamper होता है, but then it is personal preference and the screen is very good. AC controls आप यहाँ से कर सकते हो, सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड द कूलेस्ट पार्ट इज़ AC वेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। दिस इज़ वेरी कूल। ये फीचर आपको और किसी भी कार में नहीं मिलता है, स्पेशली एट दिस प्राइस। सो इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव व्हाट दिस
BYD सील इज़ ऑफरिंग टू यू। स्विंग का ऑप्शन भी आपको मिलता है, घर के एसी वाले फीचर्स आपको मिल रहे हैं इस BYD सील के साथ। सो कूल। देन आपको एयर प्यूरीफायर दिया गया है। एज यू कैन नोटिस PM 2.5 का लेवल जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। क्विकली भी आप कैबिन को प्यूरीफाई कर सकते हो अगर आप चाहो। एंड देन AC में ये सारे चेंजेस करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। आई एम श्योर इट इज़ क्वाइट लाउड राइट नाउ, सो लेट मी जस्ट गो बैक टू दी AC कंट्रोल्स एंड रिड्यूस द फैन स्पीड। तो काफ़ी आसानी से आप ये सभी चेंजेस कर सकते हो। बट यू नो आई एम नॉट अ फैन ऑफ टच सेंसिटिव कंट्रोल्स फॉर योर एयर कंडीशनिंग। तो यहाँ पे आपको AC ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है और आप एयर कंडीशनिंग को जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ से इस स्पीडोमीटर क्लस्टर पे से भी कंट्रोल कर पाओगे। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड प्रिफर रादर देन टचिंग द स्क्रीन व्हेन आई एम ड्राइविंग दिस व्हीकल। नाउ सिंस वी आर ऑन दिस स्क्रीन, टच रिस्पॉन्स वेरी गुड, वेरी क्रिस्प डिटेल्स। एंड यहाँ पे आप देख लीजिए, यू हैव योर स्टीयरिंग व्हील असिस्ट मोड्स जो आप सेट कर सकते हो, ब्रेक असिस्ट एंड वॉट नॉट। देन यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ADAS के आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। लेट मी शो ऑल ऑफ देम टू यू। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी टू लॉन्ग एंड टू बोरिंग। न्यू एनर्जी सेटिंग्स में आप रीजन को चेंज कर सकते हो। चार्जिंग सेटिंग्स पे आप देख लीजिए, स्मार्ट चार्जिंग में जाके आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी आसानी से कंज्यूम करने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड इफ़ यू गो बैक, एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी कंजम्पशन का ग्राफ आपको दिया गया है व्हीकल सेटिंग्स में। नाउ व्हेन आई गो बैक, चेक दिस आउट, आपको एम्बियंट लाइट्स दिए गए हैं, काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं एंड यू कैन सेट इट एज़ पर योर प्रेफरेंस। हेड अप डिस्प्ले के लिए भी आपको ब्राइटनेस सेट करने का ऑप्शन मिलता है। एंड देन यू नो यू कैन एडजस्ट द हाइट एट व्हाट लेवल यू कैन सी इट। यू वांट इट क्लासिक और स्नो मोड। वेरी कूल इजंट इट। एक्सटर्नल रेयर व्यू मिरर्स वो भी आप इस स्क्रीन पे से कंट्रोल कर पाओगे। देन यू कैन सेट ग्रीटिंग्स, सीट ग्रीटिंग्स या ऑटो वाइपर। एयर कंडीशनिंग में आपको दिखा चुका हूँ। सीट पे आपको एडजस्टमेंट जो है उसे सेट करने का भी ऑप्शन मिलता है, मेमोरी फंक्शन। सीट वेंटिलेशन और हीटिंग मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। डोर्स एंड विंडोज़ के आपको यहाँ पे सारे ऑपरेशंस दिए गए हैं एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ नोटिफिकेशंस। एंड ओवरऑल चेक दिस आउट, दिस स्क्रीन वेरी नाइस। इस तरह से आपको अलग अलग ऐप्स जो भी ओपन हैं उन्हें क्लोज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है लाइक अ स्मार्टफोन। एंड इफ़ यू टैप दिस बटन, दिस विल गो इनटू स्लीप मोड एंड यू कैन वेरी क्विकली वेक इट बैक। यहाँ पे टच करके भी आप स्क्रीन ओरिएंटेशन जो है उसे चेंज कर सकते हो। बट कीप इन माइंड, इफ़ यू आर वेयरिंग पोलराइज्ड सनग्लासेस, द डिस्प्ले how you can see it comfortably will differ based on your sunglasses which you are wearing, based on the orientation. So very good screen. अब ये जो screens हैं, इसके अलावा ये जो स्टीयरिंग व्हील पे ये जो बटन्स दिए गए हैं आपको, इसके अलावा आप डैशबोर्ड देख लीजिए। इट इज़ मिनिमलिस्टिक। ज़्यादा यहाँ पे कोई क्लटर आपको दिखाई नहीं देगा इन टर्म्स ऑफ बटन्स एंड यू नो अननेसेसरी कंट्रोल्स। वेरी नाइसली डन। चेक दिस आउट, यहाँ पे स्क्रीन के नीचे आपको 2 वायरलेस चार्जिंग पैड्स मिलते हैं फॉर योर स्मार्टफोन। सो चेक दिस आउट एंड दीज आर रियली लार्ज स्टोरेज एरियाज। दिस इज़ एन iPhone 15 Pro Max. This is an iPhone XE. Both phones simultaneously wirelessly charging and it works एवरी सिंगल टाइम फ्लॉलेसली। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि हमने वहाँ पे फ़ोन रख दिया और वो चार्ज नहीं हो रहा था। इसके आगे यहाँ पे कोई स्टोरेज बिन नहीं है। नाउ दिस इज़ योर गियर सिलेक्टर कंट्रोल। चेक दिस आउट, दिस इज़ योर गियर नॉब, योर गियर सिलेक्टर, टॉगल स्विच, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। एयर कंडीशनिंग को ऑटो मोड पे आप यहाँ से सेट कर पाओगे। दिस इज़ फॉर योर डीफॉगर, वॉल्यूम रॉकर। ये है ड्राइव मोड सिलेक्ट करने के लिए बटन, और ड्राइव मोड जो है वो आपको 3 मिलते हैं। चेक दिस आउट, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। और इस रॉकर बटन को एडजस्ट करके आप ड्राइव मोड चेंज कर सकते हो। दिस इज़ अनदर बटन ओवर हियर फॉर ट्रिकी सिचुएशंस। I think this is additionally a snow mode which is being offered to you in this BYD seal. And then यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक पार्किंग का जब आप बटन प्रेस करते हो इस तरह से आपको अलर्ट्स भी यहाँ पे दिखाई देंगे।
ऑल ऑफ दीज बटन्स, वेरी इजी टू कंट्रोल, और लेआउट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, सिंपल है। पार्क बटन अलग से आपको यहाँ पे दिया गया है। नाउ वी हैव टू गो बैक टू द स्क्रीन बिकॉज नाउ आई हैव टू शो यू द रिवर्सिंग कैमरा डिस्प्ले। चेक दिस आउट, रिवर्स गियर मैंने एंगेज किया है एंड नाउ दिस इज द डिस्प्ले। इफ आई प्रेस दिस पार्क बटन, इमीडिएटली ये जो डिस्प्ले है ये बंद हो चुका है। नाउ इफ यू वांट टू क्विकली एक्सेस दिस, आपको स्टीयरिंग व्हील पे ये बटन दिया गया है फॉर योर 360 डिग्री कैमरा। एंड चेक दिस आउट, दिस इज द फीड and very intuitive screen, very good touch response, and the screen quality and the camera feed very crisp, and all of this information is going to help you park your BYD Seal carefully and confidently. आपको अलग अलग कैमरा एंगल्स भी मिल जाते हैं and you can actually view this camera even while driving your BYD Seal, और सेटिंग्स में जाके आप देख लीजिए, आप और भी चेंजेस कर पाओगे। एंड ओवरऑल ये जो डिस्प्ले है, लेट मी ब्रिंग इट बैक, जस्ट हैव अ लुक एट इट, इट शोज ऑल द शैडोज नाइसली। जहाँ जहाँ पे धूप है, एवरीथिंग इज़ बीइंग वेरी वेल कैप्चर्ड। और जब आप किसी कार को ओवरटेक भी कर रहे होगे और अगर आपने ये स्क्रीन एक्टिवेटेड रखी है, आप उस कार का नंबर भी देख पाओगे। इट इज़ दैट गुड दिस स्क्रीन। सो वेरी गुड। ऑफ कोर्स कनेक्टेड टेक आपको मिल जाती है एंड दो फ़ोन्स वायरलेसली चार्ज हो रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा बिकॉज ऑफ द फोकस, बट दैट नोटिफिकेशन इज शोन टू यू ओवर हियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस। दो कप होल्डर्स आपको मिलते हैं एंड चेक दिस आउट, द ड्राइवर साइड इज हाइट एडजस्टेबल, सो यू कैन प्रेस इट डाउन अगर आप लंबे बॉटल्स या ड्रिंक्स कैरी कर रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड नाइसली डन। एंड ओवरऑल यहाँ पे ज़्यादा कोई ग्लॉस पैनल नहीं है, दैट आई एम अप्रिशिएटिंग बिकॉज अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फिंगरप्रिंट्स नज़र आते। डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको ये सुएड फिनिश मिल जाती है। यू हैव मेटालिक एंड टेक्सचर्ड एक्सेंट्स ओवर हियर एंड इट लुक्स वेरी नाइस टू टच। ऊपर भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है एंड यू हैव अ स्पीकर ओवर हियर एज वेल। टॉकिंग अबाउट योर इनसाइड रेयर व्यू मिरर, दिस इज इलेक्ट्रोक्रोमिक ऑफ कोर्स, एंड देन यहाँ पे आपको टच सेंसिटिव कैबिन लैम्प्स मिल रहे हैं एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। देन दिस इज द ग्लास रूफ, फुल ग्लास रूफ ओवर हियर, no openable panoramic sunroof, and we have parked it in shade because otherwise it would have just been too bright a video, but यहाँ पे कोई tinting option आपको नहीं मिलता है and there is no retracting curtain as well, so you will have to live with this, you will have to live with the light that is thrown inside the cabin. Maybe आप शायद एक sun film यहाँ पे fit कर पाओगे if you wish to. Now talking about the glove compartment, रीजनेबली साइज है, काफ़ी सारा सामान आप यहाँ पे रख पाओगे। फेल्ट लाइनिंग है, तो यहाँ पे अगर आपने कोई हार्ड आइटम रख भी दिया होगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू रैटल अराउंड एंड यू नो क्रिएट सम नॉइज विच माइट डिस्ट्रैक्ट यू और annoy you. Have a look at the passenger side door pad, very nice, very aesthetic, and I really like these seats. They are very good to touch, they are very comfortable to sit on. और ये जो पैसेंजर साइड सीट भी है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। पैसेंजर साइड पे आप देख लीजिए, सनवाइजर के साथ आपको मिरर दिया गया है विथ इल्यूमिनेशन, एंड ऑन द ड्राइवर साइड ऑल्सो सनवाइजर विथ इल्यूमिनेशन, नाइसली डन। एंड अगेन ये जो डार्क थीम है फॉर द रूफ लाइनर, दिस इज गोइंग टू बी ईजी टू मेंटेन इन योर ओनरशिप साइकिल। अब ये जो आर्मरेस्ट दिया गया है आपको, ये आगे पीछे स्लाइड नहीं होता है, लेकिन इसके नीचे आपको एक कूल्ड स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है एंड दिस इज़ क्वाइट लार्ज। चेक दिस आउट, मेरा हाथ कितना अंदर चले जाता है। तो यहाँ पे आप आपके ड्रिंक्स के बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स, सॉफ्ट बेवरेजेस के बॉटल्स स्टोर कर पाओगे, और यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच लाइनिंग मिल जाती है, सो नथिंग इज़ गोइंग टू मेक टू मच ऑफ अ नॉइज़। ये गाड़ी जो है ओवरऑल काफ़ी वेल बिल्ट, वेल फिनिश्ड फील देती है आपको इन द फ्रंट कैबिन एंड आई हैव बीन माइटी इम्प्रेस्ड। बट अभी चलिए बात करते हैं रियर कैबिन के बारे में, स्पेस के बारे में एंड ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स के बारे में। सो बिफोर आई गेट देयर, लेट मी अगेन शो दिस टू यू। ये जो ड्राइवर सीट है मैंने एडजस्ट कर रखी है एट इट्स लोएस्ट सेटिंग। दिस इज़ अ कंफर्टेबल ड्राइविंग सीट पोजिशन फॉर मी
एंड नाउ आई एम गोइंग टू जंप इन द बैक सीट। अभी जब मुझे बैक सीट में बैठना है, चेक दिस आउट, सीट जो है इट इज़ लो एंड द लेग रूम इज़ क्वाइट नाइस। यहाँ पे आप देख लीजिए काफ़ी अच्छा नी रूम मुझे मिल रहा है, बट बिकॉज दिस सीट इज़ एट इट्स लोएस्ट सेटिंग, सीट के नीचे मुझे मेरे फुटवेयर को स्लाइड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सो आई एम गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ दिस स्पेस यूजेबिलिटी। इस तरह से जब मैं बैठूंगा मुझे ज़्यादा थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओवर हियर गुड हेडरूम इवन विद दिस फास्ट बैक बॉडी स्टाइल। और पीछे से आप देख लीजिए ये ग्लास रूफ जो है, दिस लुक्स वेरी स्टाइलिश, वेरी फैंसी। एंड ये जो सीट है, चेक दिस आउट, दिस इज एट इट्स लोएस्ट, दिस इज नॉट एट इट्स लोएस्ट। तो आपको ये हाइट वेरिएशन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको एक कटआउट भी दिया गया है जस्ट फॉर डिज़ाइन एस्थेटिक्स। दीज आर इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट्स फॉर दी फ्रंट पैसेंजर्स। यहाँ पे ओवरऑल इन द बैक सीट आई एम स्टिल हैविंग अ गुड व्यू ऑफ एवरीथिंग अराउंड मी। ये ग्लास सेक्शन जो है दिस इज नॉट टू हाई बट इट इज़ नाइस एंड वाइड, सो इट इज़ अलाउिंग गुड अमाउंट ऑफ लाइट इनसाइड द कैबिन। क्लॉस्ट्रोफोबिक मुझे फील नहीं होगा। एंड यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। एंड ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ergonomics टू रेस्ट माई राइट हैंड एंड माई लेफ्ट हैंड, दिस इज एट द आइडियल लेवल। ज़्यादा ऊपर नीचे ये नहीं है। दोनों ही फ्रंट सीट्स के पीछे आपको सीट बैक पॉकेट्स दिए गए हैं। यू हैव स्मार्टफोन पॉकेट्स एज वेल अलॉन्ग विथ मैगजीन पॉकेट्स। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स दिए गए हैं। नो इंडिविजुअल कंट्रोल फॉर रियर AC वेंट्स। यहाँ पे आपको स्मार्टफोन रखने का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए एक USB पॉइंट भी मिल रही है। यू हैव अ टाइप A एंड टाइप C USB पॉइंट ओवर हियर फॉर द रियर ऑक्यूपेंट्स। ये जो सीट है वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी कंफर्टेबल। चेक दिस आउट, दिस इज द ब्रोशर, आई विल जस्ट थ्रो इट अवे। ये जो आर्मरेस्ट है इसमें आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पे कप होल्डर्स के नीचे जहाँ पे ये कप होल्डर्स रेस्ट होंगे, दैट ऑल्सो इज सॉफ्ट टच मटीरियल। अगेन दिस जस्ट शोज दैट हाउ मच अटेंशन टू डिटेल हैज गॉन इन टू गिव यू दैट प्रीमियम फील। आर्मरेस्ट रिट्रैक्ट करके आप देख लीजिए, आपको तीनों ही रियर पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। एंड द हेडरेस्ट इज वेरी कंफर्टेबल एंड आइडियली प्लेस्ड। आपको BYD की ब्रांडिंग दिखाई देगी ऑन द हेडरेस्ट। सीट जो है अगेन द सेम क्विल्टेड पैटर्न विथ कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग, वाइट पाइपिंग, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स। आपको टेथर्स यहाँ पे दिए गए हैं ऑन बोथ द रियर सीट्स, नॉट इन द सेंटर। और आपको फ्रंट सीट पे भी ऑप्शन तो मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। सो ओवरऑल दिस इज क्वाइट अ कंफर्टेबल कैबिन फॉर श्योर। एंड इफ यू वांट टू कैरी एक्स्ट्रा स्टफ, अगर आपको बूट स्पेस जो है वो और वर्सेटाइल तरीके से इस्तेमाल करनी है, आपको 60-40 स्प्लिट भी मिलता है फॉर दिस रियर सीट बैक, सो दैट यू कैन कैरी लार्जर आइटम्स इन द बूट ऑफ दिस BYD सील। आपको एक छोटा सा रियर क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है, विच यू विल नोटिस फ्रॉम द आउटसाइड, this small little section, but this is not really going to do much in terms of allowing light inside the cabin, because जब आप इस तरह से यहाँ पे बैठे हुए होते हो, that quarter glass is way too far behind to make any kind of difference. But then it is the design aesthetic, it is the design philosophy that the brand is following. यहाँ पे आपको एक कोट हुक भी दिया गया है और आप देख सकते हो हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी आपको दिए गए हैं इस BYD सील इलेक्ट्रिक सेडान के साथ। रियर डोर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कोई सन कर्टन नहीं मिलता है, नो रिट्रैक्टेबल सन कर्टन, आई विश दैट वाज ऑन ऑफर। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग, बॉटल होल्डर्स और डायना ऑडियो की ब्रांडिंग ऑन द स्पीकर्स। ऑफ कोर्स आपको ट्विटर्स भी मिलते हैं, दिस इज अ प्रीमियम कार एंड यू ऑल्सो हैव स्कफ प्लेट्स। यहाँ पे BYD की ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन जो फ्रंट डोर है, चेक दिस आउट, इसके स्कफ प्लेट पे आपको BYD की ब्रांडिंग नजर आएगी। एंड चेक दिस आउट, हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट फॉर द फ्रंट पैसेंजर। अभी चलिए बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। सो टू ओपन द बूट आपको एक छोटा बटन यहाँ पे दिया गया है एंड व्हेन आई प्रेस दिस, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, असिस्टेड, एंड हैव अ लुक एट दिस, काफ़ी अच्छी बूट स्पेस आपको मिलती है। दिस इज़ नाइस एंड डीप, काफ़ी सारा सामान आप यहाँ पे कैरी कर पाओगे। एंड बियॉन्ड दिस अगर आप चाहो तो आपको वो 60-40 रियर सीट स्प्लिट भी मिलता है टू कैरी मोर आइटम्स, मोर लगेज। एंड आई थिंक दिस इज़ अ जॉब वेल डन। यहाँ पे फ्लोर के नीचे आपको एडिशनल स्टोरेज स्पेस मिलती है। सो लेट मी जस्ट ड्रॉप इन अ बैकपैक
एंड चेक दिस आउट, अगर आपको कोई सामान छुपा के रखना है, you can maybe keep it under this section so that it is not easily visible maybe when you enter a parking lot in a mall. तो ये जो स्टोरेज स्पेस है ये भी काफ़ी वर्सेटाइल है. बट दिस इज़ नॉट दी ओनली स्टोरेज स्पेस दैट इज़ अवेलेबल. सबसे पहले तो बूट बंद करने के लिए आपको ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन के लिए एक बटन दिया गया है, वेरी ईजी टू एक्सेस. एंड नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरेज, हमें बॉनेट ओपन करनी होगी. एंड when I do that, check this out, ये जो BYD सील है ये एक इलेक्ट्रिक कार है. सो बॉनेट के नीचे कोई इंजन नहीं है, हाइड्रोलिक असिस्ट आपको मिलता है फॉर द बॉनेट टू स्टे ओपन. और यहाँ पे इस BYD ब्रांडिंग के नीचे आपको मिलती है एक फ्रंक स्टोरेज एरिया अंडर द बॉनेट, नाइस एंड डीप. काफ़ी सारा सामान आप यहाँ पे रख पाओगे. आई एम श्योर मोस्ट पीपल वुड यूज दिस स्पेस टू स्टोर देयर charging cables, charging guns, and even some more stuff, because this is really deep, this is really generous, and it locks in securely, so nothing is going to fall out. Of course bonnet बंद करके ही आप गाड़ी चलाओगे, so nothing is going to fall out. And that is it, that is all that you need to know about this BYD Seal electric sedan. क्या आपको ये गाड़ी पसंद आई ऑन द इनसाइड? डू यू थिंक दिस इज स्पेशल? डू यू थिंक दिस इज प्रीमियम? क्या आपके हिसाब से ये गाड़ी अपना प्राइस टैग जस्टिफाई कर रही है? You definitely let us know in the comments after you go and check this out, or based on your opinion after watching this video entirely. And if you have stuck around for so long, thank you so much for watching. Till next time, always wear your seat belts, always drive safe on the road, subscribe to the Shifting Gears channel, and I will see you soon with another vehicle very soon.